ऑन आहे लाईव्ह आहे का रे? मी मला लिंक नाही दिसत आहे, थांब. आला. ओके, ऑल राइट. So very good morning, dear students. How are you all doing? So the first day today for your foundation classes, right? So I think you just had your maths lecture. So today is going to be more of a introduction that we are going to have. तो फिर आपको correct आपका normal schedule and all this routine, you will get used to it, right? So now let us understand कि the topic, the subject that is law. Do you know it's divided into two parts? Yes. So the law paper that you're going to have for foundation, it is going to be divided into two parts. ठीक है, तो उसके क्या parts होते हैं law के? Yes. So a very good afternoon to all the live streaming students also. So lot of inter students. Okay, wish you all the best. Yes, your exams are going on, I know. So let's focus and let's understand here. We are going to study the paper which is your law paper. It consists of two parts. Do you know what are the two parts? Yes. So one, you're going to have the law part of it, which is your section A, which is for 60 marks. Then there is BCR. What is BCR ka full form? Business correspondence and reporting. Business correspondence and reporting. Now this is for 40 marks. ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी टेल यू, इसको जनरली हम जैसे इंग्लिश भी बोलते हैं कि इंग्लिश फॉर 40 मार्क्स एंड लॉ फॉर 60 मार्क्स. ठीक है ना, तो लेकिन ये जनरल इंग्लिश नहीं है, ये बिजनेस इंग्लिश है. तो यहाँ जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इंग्लिश और you know a lot of grammar of English. No, there's only one topic on grammar of English. So I'm not going to teach you that. What we are going to learn is business English, means business communication. We are going to learn about letter writing, email writing. So you're like, ma'am, इसमें क्या है, ये तो हमको आता है already. Absolutely. The subject doesn't have too much of concept based learning, no, but the focus for this subject is going to, it should help you score marks. And it should help you score and get a good score in the law paper, which helps you with a very good aggregate. That's the main intention. ठीक है, now it will have topics like mail writing, letter writing, and of course ये communication. Let me tell you, यहाँ आपको लगेगा कि ये क्या है, but practically ये बहुत जरूरी है. The way you communicate in offices, the way you write mails, your resume writing. So we're going to learn about communication. So all these things do matter. So मैम इट्स लाइक एनीवेज इट्स इंग्लिश, तो हमने अगर नहीं भी अटेंड किया तो भी हम पेपर लिख पाएंगे क्या? सो आप पेपर लिख पाओगे, बट यू विल नॉट नो द रूल्स विच आईसीआई इज एक्सपेक्टिंग यू. आईसीआई एक्सपेक्ट्स यू कि लेटर शुड बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो आपको उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. आईसीआई एक्सपेक्ट्स की रेज्यूमे राइटिंग के 3 टाइप्स है, तो आपको वो 3 टाइप्स के हिसाब से जाना पड़ेगा. सो दैट इज वाई टू गेट मार्क्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आईसीआई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. तो इसके लिए अपने को बीसीआर करना है. आई विल नॉट टेक मच लेक्चर्स, इट विल बी अराउंड 30 लेक्चर्स. सो आई विल बी टीचिंग यू द बीसीआर पार्ट. अंकिता मैम विल बी टीचिंग यू द लॉ पार्ट. ओके, सो मेन फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन की काइंड ऑफ सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं वो बताऊंगी, फिर मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर थोड़ा सा और सब्जेक्ट का एक हाथ पार्ट में आपको पेपर एनालिसिस, उसके इंडेक्स में क्या क्या आपका सिलेबस है, मैं आपको सब दिखाऊंगी. ठीक है, तो पहले तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, आपकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले, यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट कि हम क्या पढ़ने वाले, क्या सीखने वाले, और आईसीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो भी उतना ही जरूरी रहता है. ठीक है, सो लॉ पेपर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट, क्या मैम ये एग्जाम में अलग अलग पार्ट्स में आएगा क्या? नहीं, एक ही क्वेश्चन पेपर आता है. ठीक है, सो देयर इज पार्ट ए एंड देयर इज पार्ट बी. पार्ट ए इज 60 मार्क्स which is your law. So this syllabus will be done by Ankita ma'am. She'll be doing that. BCR is for 40 marks, and beta, let me tell you, 40 marks is quite a lot. If you want to pass and you want to clear and score, 40 marks is quite a lot, and it's easy scoring wala marks. तो आप फटाफट मेरे साथ क्लास में कर लोगे. इन दैट आई विल प्रिपेयर 1 डे बिफोर द एग्जाम. एक मैं नोटबुक बनाती हूँ, तो हम एक ही नोटबुक के सेक्शंस करेंगे. तो आखिरी के कुछ विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. 1 पार्ट विल कॉल इट एज 1 डे बिफोर द एग्जाम.
तो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर कराती जाऊंगी, मैं 1 डे बिफोर के लिए क्या रूल्स है आपको लिखवा के दूंगी. So 1 day before the exam, you have to just go through that, and in an 1 hour or 2 hours time, your BCR is done, and you are ready for getting your marks. Do you understand that? So then what happens if you focus along with me in BCR, then you can focus on your other subjects which have a lot of concept based learning. Like there's maths, there's law, there's accounts, there's the law part of it, to economics, they have concept based learning. Here we have simple rules that what are the resume writing, what are the rules for letter writing. जैसे हम किसी को letter लिख रहे हैं official, मैम हमने तो लेटर राइटिंग स्कूल में भी किया, आई नो दैट. तो बट आपके फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, आईसीआई की एक्सपेक्टेशन कुछ और है. और इतना ही नहीं, जब भी आप कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू के लिए, आप रेज्यूमे दोगे, आप आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाओगे, ऑल दिस इज गोना हेल्प यू. You're going to need this kind of communication skills, writing of mail. So you will be told कि आपका रेज्यूमे भेज देना. रेज्यूमे आर्टिकलशिप के लिए आप इंक्वायरी करोगे, they'll tell you please send your resume. So you will have to do this. Then you'll have to send a letter. आप clients के साथ बात करोगे तो किस तरीके से बात करना है, एक उसके कुछ rules होते हैं. तो what we are learning is not general English. What we are learning is business English. ये term ICI ने अपने मॉड्यूल में यूज किया है कि we are not here to teach you general English, but we are here to teach you business English. Is that okay? So what we are going to learn is about business English. और business English में इट्स बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये हमारे 40 मार्क्स के सब्जेक्ट का नाम है. करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन. व्हाट इज करस्पॉन्डेंस? कम्युनिकेशन. बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंग्स के एजेंडाज बनाना, ये सब हम सीखने वाले. सो रिपोर्टिंग इज देयर एंड करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है communication. What is the meaning of correspondence? Communication. So we are learning business communication. So it's a 40 marks, very easy, around 30 and 32 lectures के आसपास I will be finishing that. Now either of it will happen that we'll mostly be starting with BCR here, or law we'll be taking we'll be deciding that of course, and we'll let you know. But as of now I'm going to start with the BCR part. Correct? The exact schedule of your batches, the timings and all, will by Monday we'll have a final timing. Tomorrow's time will again update you and tell you why. So because right now today's introduction, so Raj sir just took for an hour, but generally he would take maths for 1.5 hours. Accounts would be for a more time. My topic would be, my class would be, lecture would be only for 1 hour. Okay, so that exact schedule we'll be following, and you will get into the flow of it from Monday. But of course, today onwards, I'll start with a little bit of brief about the topic. Now, this was a little introduction of the subject. Now, I'll just give you a little introduction about me. So, I am CA Pooja Kamdar Date. I have qualified in the year in Jan 2002. I qualified in the year Jan 2002. I've been teaching for last 20 years. I teach taxation. Basically, that's my core in CA intermediate. BCR is just that few batches, like last batch I took. This time I did have some time, so I was like, it's a short syllabus and I can do it. So I just came from my lecture for inter lecture, which is morning 8 to 11:15. I just did that lecture and I've come down for the BCR lecture. So I'm teaching taxation in intermediate, and I'm teaching taxation for the last 20 years. I've been a science student in 11th and 12th, and after that I decided to shift to commerce. And when I shifted to commerce, of course, I've been a rank holder in CA intermediate and in CA final. My CA inter rank has been 25 and CA final rank has been 33. So 33rd rank in final and 25th in intermediate. And since I qualified, since 2002, I am been into full-time practice. I'm a practicing chartered accountant. I have my office in Model Colony. So I've been practicing for last 20 years, and proper, it's a full-time practice that I have. We have articles working in the office, and we have proper returns and ITR and all that work going on in the office. So this is a brief introduction that I've given you about myself. Okay, so here with BCR, what do I want you to do? In BCR, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप BCR की बुक अलग मेंटेन करिएगा और लॉ की बुक अलग मेंटेन करिएगा. सो इट्स अ सेपरेट थिंग. अगेन
had it been I was teaching you tax, I would have said it is lot of concept based, आपको practically यही करना है. But I know for BCR थोड़ा सा आपको लगा क्या लेटर राइटिंग और क्या ये, आप उस हिसाब से मत सोचिए. आप ये सोचिए कि आपको फाउंडेशन क्लियर करने में BCR एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट विल हेल्प यू स्कोर बिकॉज इट्स there's a cost benefit analysis. आप कितना एफर्ट लेते हो और उससे कितना बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है. सीए एग्जाम है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए, थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्लानिंग करोगे तो आप क्लियर कर पाते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीसीआर इज अ सब्जेक्ट जहां पे आपको एफर्ट कम देना है और आपको रिजल्ट्स अच्छे और ज्यादा मिलेंगे. सो इट विल हेल्प यू स्कोर. सो आई एम गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉपर, आपको कॉन्सेप्ट बेस भी लूंगी और ज्यादा फोकस मेरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है. विच क्या उसमें अभी लेटर राइटिंग में मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बताऊंगी, तो मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि लेटर ऐसे लिखना है. जैसे अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, सपोज यू आर टॉकिंग टू सम अमृता कुलकर्णी, सो इफ यू आर टॉकिंग टू अमृता कुलकर्णी एंड इट्स फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग टू हर, विल यू से डियर अमृता? No. You will say in the letter writing, you will say dear miss or respected ma'am or dear Kulkarni. So these are the rules कि letter writing में first name नहीं use करना है, second name use करना है, surname ही use करना है, first name नहीं use करना है. ऐसे ICI के rules है. तो मेरा काम क्या होने वाला है, मैं आपको इस टाइप के ICI के rules बताऊंगी. आप ये rules समझ के BCR का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर्स ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा. और जो बीसीआर बिना पढ़ के गया वो लेटर लिख के तो आ जाएगा, बट वो मेंटली तभी प्रिपेयर नहीं होगा कि अरे कैसे ये लेटर लिखना है, क्या रूल्स है. यू विल स्पेंड टाइम, क्योंकि आपको 3 आवर्स में बीसीआर भी अटेम्प्ट करना है और लॉ का पेपर भी अटेम्प्ट करना है. ठीक है. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड कि बीसीआर में इस टाइप का मुझे पता है, ये फॉर्मेट है, ये पेपर है, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड व्हेन यू गो प्रिपेयर्ड देन ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस इज बेटर. एंड आवर टारगेट हियर इज इन वेरी वेरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ऐसा करेंगे कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम ले पाए. इज दैट ओके? सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फॉर बीसीआर? आई एक्सपेक्ट यू टू हैव अ सेपरेट notebook and you should have a separate notebook for this. This notebook will have 3 parts. So one will be the regular whatever एक ही नोटबुक, कोई मुझे 3 नोटबुक नहीं चाहिए, इतना सा तो सिलेबस है. इट्स जस्ट वेरी लिमिटेड सिलेबस. ओके. सो ज्यादा नहीं है बीसीआर का सिलेबस, बहुत लिमिट और कंट्रोल में है. पेपर फॉर्मेट काफी सिमिलर आईसीआई, यहाँ पे पैटर्न जो उनका होता है ना पेपर आस्किंग का, काफी सिमिलर है. सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो विथ यू. तो एक जो मैं क्लास में रेगुलर क्लास में जो भी कराऊंगी एक पार्ट वही होगा. ओके. एक लास्ट वाला पार्ट हम डिवाइड करते हैं इनटू ईडियम्स. मुहावरे होते हैं ना, तो बहुत सारे मुहावरे दिए आपको, ईडियम्स, यू हैव टू लर्न दैट. तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग इन वन गो एकदम से 50 मुहावरे, तो हम क्या करते हैं, मैं क्लास में एवरी डे आई विल टेक 8 or 10 ईडियम्स. सो देन इट इज फन टू लर्न 8 or 10 ईडियम्स एवरी डे एंड वील मेक अ लिस्ट ऑफ इट. एंड वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज 1 day बिफोर एग्जाम्स. एंड दिस इज योर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टार परफॉर्मर है बुक का, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज 1 day बिफोर सिलेबस इतना वास्ट होता है कि क्या पढ़ के जाओ. अब लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट बीसीआर की बुक से कैसे देखेंगे हम लोग? डू यू अंडरस्टैंड? कितना क्या क्या देखेंगे उस दिन, लॉ पढ़ू कि बीसीआर पढ़ू, कितना टाइम मिलेगा एक दिन पहले, वो भी सोचना. सी अगर आप है ना फाउंडेशन का पेपर है ना एक एक करके एग्जाम देते तो पक्का क्लियर हो जाते, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स मिला के एक एग्जाम है तो एक दिन देना है, एक ही दिन का ब्रेक मिलेगा, लगे नेक्स्ट पेपर, इमीडिएट नेक्स्ट पेपर. देन द सिलेबस इज वास्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट. प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस क्या है, वास्ट है. तो वी हैव टू कवर इट अप एंड प्लान सो दैट यू आर एबल टू स्कोर. डू यू गेट दैट? सो आई विल बी टीचिंग यू बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश के मैं रूल सिखाऊंगी आपको. आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो बताऊंगी. आपके नोट सब कवर करेंगे, आईसीआई की सारी चीजें. हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. एक नोटबुक हम रखेंगे जो मैं क्लास में रेगुलरली आपको बताऊंगी. कुछ आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, विल डू दैट. आफ्टर दैट एक ही पार्ट में मैं हर चैप्टर की समरी देती जाऊंगी आपको. सो इन दिस 1 day बिफोर द एग्जाम में क्या दूंगी बेटा आपको, समरी. तो ये जो भी समरी है, शिवम डोंट वरी यार, ऑल द बेस्ट, हो जाएगा. नाउ लिसन, अब देखना. तो ये जो समरी है
हर चैप्टर की मैं आपको समरी दूंगी, तो ये समरी आप 1 डे बिफोर द एग्जाम करके जाइएगा। इस बीसीआर के 40 मार्क्स का गोल सिर्फ इतना ही है, इट शुड हेल्प यू स्कोर। यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ज्यादा नहीं है, सो इट्स अ वेरी लाइट लेक्चर। तो अगर आप मैथ्स का लेक्चर करोगे थोड़ा हैवी हो जाता है, लॉ पढ़ोगे तो थोड़ा हैवी हो जाता है, यू नो हैव टू सिट अंडरस्टैंड। लाइक टैक्स लेक्चर इज वेरी हैवी, सो वेयर आई डू डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी, so it becomes a very heavy syllabus, okay? But BCR is simple, plain, like a story. You have to enjoy the session and keep in mind my target here is to get a good score. Is that okay? So that's the intention with which you should study BCR. Minimum time, maximum output I should get from this. क्या target है अपना? Minimum time, maximum output. Is that okay? सो ये 1 नोटबुक हो गया आपकी सेपरेट, जहां पे हम 3 पार्ट्स करेंगे। रेगुलर क्लास में जो हम मैं लिखवाऊंगी 1 डे बिफोर द एग्जाम एंड इडियम्स की लिस्ट, ठीक है। अब इसका पेपर पैटर्न वगैरह क्या कैसे होता है, इसके इंडेक्स मतलब मैं आपको सिलेबस की मुंह दिखाई कराऊंगी, तो सिलेबस में क्या क्या है आपको सारे टॉपिक्स के नाम बता दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये सब पढ़ना है, ठीक है। ओके, क्या तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह खाया कि नहीं खाया? नहीं, क्यों? खाली पेट दिमाग में कुछ नहीं जाता। यू शुड ऑलवेज हैव योर ब्रेकफास्ट एंड कम फॉर क्लासेस, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टडी का प्रोसेस, देन यू विल एंजॉय इट इवन मोर, ठीक है। अब देखो ये जो पेपर एनालिसिस होता है, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हुआ, थोड़ा स्क्रीन पे देखना, देखो कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, क्वेश्चन 7 से। नाउ व्हाई आर वी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 7? बिकॉज पहले 6 क्वेश्चन किसके हैं, लॉ के, एंड 7 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका बीसीआर, ओके। आपका क्या स्टार्ट होगा, बीसीआर। इज दैट ओके? या सो क्वेश्चन 7 इज कंपल्सरी। नाउ सॉल्व एनी 3। सो ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंपल्सरी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन 7 इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। लेट अस अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। द क्वेश्चन 7 इज फॉर 5 मार्क्स। पैसेज दिया जाएगा आपको, एक कॉम्प्रिहेंशन आपने किया है क्या स्कूल में? पैसेज होता है एक, पढ़ना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आंसर करने। ये तो बहुत इजी है, ये आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे पक्का आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? ये 5 मार्क्स पूरे के पूरे पक्का मिल सकते हैं। तो पैसेज आपको दिया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंशन, एंड उसमें से आपको उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको टिक करना है। ये तो इजी है। अब रिमेनिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना, उसी पैसेज का एक समरी बनाना है और उसी पैसेज की नोट मेकिंग करनी है। क्या करना है बताना जरा? नोट मेकिंग एंड समरी। मैम समरी कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स है। नोट मेकिंग कैसे करेंगे, उसके भी रूल्स है। किस शॉर्ट में करना है उसको, वर्टिकल या फ्लो चार्ट बनाना है, बहुत सारे रूल्स है, वो सिखाऊंगी। तो नोट मेकिंग कैसे करना है मैं सिखाऊंगी, समरी राइटिंग कैसे करना है दैट ऑल्सो वील बी लर्निंग। So this is taking care of your 10 marks. Just imagine simple thing like comprehension, note making and summary writing. Can't you do it in just these are simple 10 marks? I told you it's minimum time, minimum effort and maximum output from this paper. That is what you have to do. ठीक है? क्वेश्चन 8 इज कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ही इसमें एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, सिर्फ वो थ्योरेटिकल है। उसमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ये सब होता है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ ग्रामर रिलेटेड पार्ट है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मतलब हम कुछ ऑपोजिट्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स, ये सीखेंगे। प्रेसी राइटिंग है, सो व्हाट एम आई आल्सो गोइंग टू टीच यू, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी इज अगेन शॉर्ट फॉर्म, सो समरी भी है, प्रेसी भी है, दोनों के क्या रूल्स है मैं आपको सिखाऊंगी। सो ओवरऑल सिलेबस इज अ चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन, समरी मेकिंग, नोट मेकिंग, प्रेसी राइटिंग। देन सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर, सर्कुलर्स इशू करता है, आपको पता है ना, सर्कुलर्स आपके कॉलेज का सर्कुलर आ सकता है, आईसीआई का सर्कुलर आ सकता है। अरे एक नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया कि इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। तो ये सर्कुलर कैसे लिखना है, आप ऑफिस में जाके किसी हाई पोस्ट पे जाओगे तो ये कौन आपको सिखाएगा, आपको पता होना चाहिए सर्कुलर किस टाइप से लिखते हैं। मीटिंग कॉल करनी है तो मीटिंग का एजेंडा होता है कि आज हम क्या करना है। देखो आज आप क्लास के लिए आए तो यू वांट टू नो ना शेड्यूल क्या होने वाला है। आप क्लास के लिए आए तो जैसे ही ऐसे कोई लोग मीटिंग्स के लिए आएंगे तो आई वांट टू नो ना मीटिंग में आज होने क्या वाला है। तो आपको भी पता है आज फाउंडेशन की क्लासेस होने वाली, फिर भी यू वांट टू नो द शेड्यूल ना।
यू वांट टू नो द शेड्यूल कि व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम इज विच लेक्चर, उसके बाद कौन सा लेक्चर, फिर लंच ब्रेक, फिर कौन सा लेक्चर। ऐसे मीटिंग्स के भी एजेंडा होते हैं, ऐसे मीटिंग्स के भी क्या होते हैं, एजेंडा होते हैं। आप सीए बनने के बाद यू विल गो एट सम हाई पोस्ट एंड ऑल, एंड देन यू आर लाइक स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन, इट इज नॉट गुड। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एमबीए। MBA they put a lot of stress on communication। ये हमारा नॉलेज बहुत होता है, लेकिन हमें वो दिखाना, पेपर पे लिखवा के दिखाना भी तो आना चाहिए ना, कि माय कम्युनिकेशन स्किल्स शुड आल्सो शो दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव गुड नॉलेज। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो कम्युनिकेशन का चैप्टर तो है ही, मैंने आपको बोला। उसके बाद ये देखो, मैंने आपको बोल रही थी कि ईडियम्स की हम लोग जैसे लिस्ट बनाने वाले हैं। फिर आते हैं रेज्यूमे राइटिंग। कभी कभी रेज्यूमे के बदले यहाँ पेपर में देखो मेमो पूछा है, मेमो लेटर एक होता है जो मैं आपको सिखाऊंगी, और ईमेल राइटिंग पे भी है, तो आपको दिया जाएगा यू आर वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। क्या दिया जाएगा आपको? यू आर वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको ऑर्डर देना है फॉर फर्नीचर, या आपको कस्टमर को कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और यू आर परचेजिंग सम फर्नीचर फॉर योर ऑफिस, यू आर हैविंग अ न्यू ब्रांच। तो आप कैसे लेटर लिखोगे, मेल कैसे लिखोगे कि हाँ वी वांट अ फर्नीचर, वी वांट सो मेनी टेबल, सो मेनी चेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ये कैसे ड्राफ्टिंग करोगे? तो आपको हमेशा एक क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, यू आर राइटिंग अ मेल रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन यू हैव टू राइट द मेल। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। लेटर राइटिंग आएगा, आर्टिकल राइटिंग आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं। एब्सोल्युटली समथिंग दिस lectures, if I take a 1 hour lecture every day, 30 lectures, 30 to 34 lectures is more than enough to complete your entire BCR syllabus. 40 marks will be done in your 30 lectures. Okay, so let's have a look at this chapter wise breakup दिया हुआ है। of course अगर आप एक मिनट चैप्टर वाइज से भी पहले ऑब्जर्व ना, 7 क्वेश्चन देखो, May 18 और November 19 is the same question, similar question asked. So question 7 is always fixed. So पहला टारगेट है वो 10 मार्क्स लेके आने का अपना। क्या टारगेट है अपना? 10 मार्क्स लेके आने का। क्या है पहले 10 मार्क्स में? पैसेज, नोट मेकिंग एंड समरी। सब जगह यही क्वेश्चन 7, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। नाउ यू हैव रिमेनिंग 4। आउट ऑफ रिमेनिंग 4 यू कैन राइट एनी 3। मैम आई तो नो एवरीथिंग, आई विल राइट ऑल एंड कम। ICAI डजंट डू दिस, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स है वो वाला चूज करेंगे। नहीं, जो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए खत्म, दे नॉट गोना डू एक्स्ट्रा वर्क हियर। तो ऐसा नहीं करने का कि मुझे सब अच्छे से आ रहा है, मैं पूरा पेपर करके आऊंगा तो बेस्ट ऑफ द 3 ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ICAI का। दे टेल यू, यू चूज विच वन यू वांट एंड राइट ओनली दोस। एक्स्ट्रा नहीं लिखने का। समझ में आ गया क्या? एक्स्ट्रा नहीं लिखने का, जो आता है वही लिखो और अच्छे से लिख के आओ। ठीक है? All right. So 3 questions out of the remaining 4. So paper pattern roughly पता चल गया। हाँ, तो एक बार इंडेक्स देखते हैं। ये चैप्टर वाइज का वेटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कम्युनिकेशन का चैप्टर कर लिया और पहले 10 मार्क्स कर लिए। कम्युनिकेशन लगभग 6 मार्क्स का, और पहले 10 मार्क्स का हमने देख लिया। 60 into 18 मार्क्स आपके फिक्स हो गए आउट ऑफ 40। लगभग 50%, 40 to 50% आपका वेटेज इधर ही क्लियर हो गया। पैसेज, एंड दोज आर द फर्स्ट लेक्चर्स विच आई एम गोइंग टू डू। पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, समरी राइटिंग एंड नोट मेकिंग, ये पहले ही टॉपिक्स है जो मैं कवर करवा देती हूँ। ठीक है, आगे ये देखो, ये उन्होंने मार्क्स दिया है, ये इंडेक्स है आपका। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द इंडेक्स। पहला चैप्टर क्या है? कम्युनिकेशन। दिस चैप्टर इज थ्योरी। ये चैप्टर क्या होने वाला है बेटा? थ्योरी। ये चैप्टर होने वाला है थ्योरेटिकल। वोकैबुलरी, यहां पे थोड़े से वोकैब मतलब मीनिंग्स, ऑपोजिट्स, सिनोनिम्स। यू नो व्हाट आर सिनोनिम्स? क्या होता है सिनोनिम? सिमिलर मीनिंग। एंड व्हाट आर एंटोनिम्स? ऑपोजिट मीनिंग। परफेक्ट। तो यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, मतलब पैसेजेस दिए जाएंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर देने, ये 5 मार्क्स है। उसके बाद नोट मेकिंग, इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग, दिस इज थ्योरी, इट इज अगेन नॉट देयर इन एग्जाम, ये एग्जाम में नहीं है। प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, क्या क्या है? प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग,
रिपोर्ट राइटिंग, इस पे 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही है। लेटर्स राइटिंग एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मेल राइटिंग, रेज्यूमे। आपको रेज्यूमे के बारे में पता है क्या? क्या होता है रेज्यूमे? व्हाट इज द रेज्यूमे? कुछ आइडिया है क्या तुमको? सीवी, यस। क्या होता है वो? यस, करेक्ट। एंड यू नो वी शुड हैव अ इंटरएक्टिव क्लास, हर एक ने करने का। इफ आई गिव यू होमवर्क, लेटर राइटिंग करके आओ, 2 बच्चों ने इधर आके लेटर राइटिंग पढ़ने का। दिस इज अ चांस वेर यू कैन डेवलप, यू नो, आपका स्टेज फियर आप दूर कर दो, आप आके यहाँ पे सीखो। रीड आउट द लेटर दैट यू रिटन। आपने कुछ गलती करी होगी तो आई एम देयर टू करेक्ट यू। सो गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है, और सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी है। So first, you don't get scared. You ask whatever doubts you have. You've not understood, you don't worry about it. We are here to explain you, and first you feel comfortable. And let's have an interactive class. So if I ask, you also answer, feel comfortable, and you can give answer. And if you go wrong, I'll correct you. So अगर मैंने आपको बोला लेटर राइटिंग करके आना है, रिपोर्ट राइटिंग लिख के आना है, तो आके आप, या क्लास में मैंने टाइम दिया कि लिखो और अब कोई पढ़ो, तो ऐसा होना चाहिए कि 2 या 3 बच्चे तो आके every time new student should come and read it out. So इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। You know, in real life, it's not just about your degree, it's also about your confidence, the way you present, the way you communicate. Because nobody is going to come and judge you by your knowledge in interviews and all. How you present, how you communicate shows what kind of a person you are. So people are going to judge you from that. Understand? ठीक है। तो रेज्यूमे क्या होता है? उसने सही बोला कि रेज्यूमे होता है आपका इंट्रोडक्शन। आप एक 2 पेजेस में आपके बारे में बताते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कहीं जॉब किया होगा तो एक्सपीरियंस के बारे में। तो सामने वाला पहले आपका रेज्यूमे मांगता है, रेज्यूमे देखेगा, अच्छा सही है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। उसको लगा नहीं ये रेज्यूमे अपने लिए सही नहीं है, आई डोंट वांट अ इंजीनियर इन माय ऑफिस, आई नीड सम अदर क्वालिफिकेशन पर्सन इन माय ऑफिस, तो बोलेगा नहीं ये रेज्यूमे सही नहीं है, इसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। तो रेज्यूमे में आप आपका पर्सनल डेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कोई हॉबी, स्किल, आपने कुछ अचीव किया रहेगा, कहीं डिबेट में पार्ट लिया है तो आपकी कुछ हॉबी है, कुछ स्किल है, तो वो आप इन्फॉर्म करते हो रेज्यूमे में। तो ऐसे रेज्यूमे राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग में भी आईसीआई ने उसको डिवाइड किया है। कंप्लेंट लेटर, कि आपने वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया था ऑनलाइन लेकिन आया ही नहीं है, या आ गया है लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए कोई अभी तक नहीं आया। आपने कॉल टोल फ्री नंबर पे कस्टमर केयर पे इतना कॉल किया, उनका ऐप डाउनलोड किया और आप उनको फॉलो अप कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। देन यू डिसाइड नाउ इट्स हाई टाइम, आई नीड टू राइट अ लेटर टू सम हाई पोस्ट पोजीशन पर्सन एंड टेल देम कि यार ये बहुत तकलीफ वाला काम है, कोई आया नहीं अभी तक वॉशिंग मशीन, या किसी और आपका कुछ और होगा उसके इंस्टॉलेशन के लिए कोई नहीं आया है, तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा। सो कंप्लेंट लेटर होते हैं। रिकवरी लेटर्स होते हैं। बैंक, आपको बोला जाएगा यू वर्किंग इन अ बैंक, कस्टमर ने लोन रिपे नहीं किया तो राइट अ रिकवरी लेटर। तो हम सैंपल्स पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको सरप्राइज नहीं मिलेगी। यू आर प्रिपेयर्ड कि एग्जाम में क्या आने वाला है। सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या लिख के आना है। You will save time as compared to others who are not prepared for it. ठीक है। I am a CA. I definitely know BCR doesn't hold that much of conceptual clarity, and right from beginning I want to be very clear about it. So I'm not saying it is a subject that you have to sit and understand conceptually. No, I know what subject it is. So हर subject का एक important एक feature होता है, तो इसका feature है scoring your marks. Let's be very clear about it. हाँ, बट मैम क्या हम बिना पढ़ के पेपर लिख सकते हैं? That's not possible. So I'll manage it on my. I've done letter writing in school. I've done comprehension in school. There are rules better here which ICI wants you to follow. I'll be teaching you that. ठीक है? हाँ, तो ये आपका मीटिंग्स। उसके बाद सेंटेंस का टाइप, 2 ही ग्रामर के टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे। एक रादर ये 13th वाला चैप्टर सिर्फ ग्रामर पे है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। तो ये जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है। सो डिड यू गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट? श्योर? यस। सो शुड आई एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन? यस। आर यू हैविंग अ सेपरेट नोटबुक और समथिंग विथ यू ऑल? हाँ, है क्या नोटबुक? क्या? कुछ नहीं। लेक्चर में बैठने वाले क्या तुम लोग?
ठीक आहे, सिट. दिस इज द अर्लियर बॅच, फाउंडेशन बैच. आता तुमचा कुठला लेक्चर संपला? मैथ्स हो गया और अभी अकाउंट्स है क्या? शाम को ऑनलाइन होगा, ठीक है, क्योंकि आनंद सर फिर इधर आने वाले हैं ना. ओके, नाउ सो आई गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीफ. विल स्टार्ट विद कम्युनिकेशन. यस, अच्छा, तो तुम लोग मुझे बताओ, लेट्स हैव अ नाइस एंड प्रॉपर इंटरैक्टिव क्लास. तो व्हाट डू यू थिंक इज कम्युनिकेशन? पहले तो कम्युनिकेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है. हाँ, दिस इज द ओनली चैप्टर विच इज थेरोटिकल. ओनली चैप्टर विच इज थेरोटिकल, मतलब क्वेश्चन आंसर आएगा एग्जाम में. बाकी किसी भी चैप्टर पे दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज लेटर राइटिंग, what is resume. No, they'll ask you to write a resume, they'll ask you to write a resume, they'll ask you to write a letter. No theory questions. Will there be any theory questions? No. BCR is going to be completely descriptive, मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेटर्स, रेज्यूमे, ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है, यस. तो आप बताओ ना, कम्युनिकेशन के बारे में आपको क्या पता है बेटा? Just a little 10-15 minutes introduction I'll do about communication, and then we'll actually start it again. Basically from tomorrow full fledged हमारा communication का start हो जाएगा. तो मुझे बताओ पहले, communication जो है, communication आपको क्या लगता है? What is communication? Yes. Communication is the process by which we can express our feelings. Yes, correct. Anybody else wants to add what she said? Communication is a process. हम क्या express करते हैं? हमारे feelings, thoughts. Yes. We interact with people. Absolutely. What am I standing here and doing? Communicating. Are you all communicating? You all are also. From your body language and saying yes and saying no, I can understand. So are you all also communicating? Yes. From your expressions, I can understand. Are you all understanding, not understanding, listening, not listening? ओके, सो तुम लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हो. कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि वर्ड्स में हो, कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी होता है. कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ घर ऑफिस में होता है, घर पे भी कम्युनिकेशन होता है. व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स यू कम्युनिकेटिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स यू कम्युनिकेटिंग, व्हेन आई एज अ टीचर आई एम कमिंग एंड टीचिंग आई एम कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन ये दो प्रकार का हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनफॉर्मल सिखाना ही नहीं है, इनफॉर्मल के कोई रूल्स ही नहीं होते. घर वालों से बात करने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए क्या रूल्स चाहिए? कोई रूल्स नहीं है. तो रूल्स कहाँ होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन में. कहाँ होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन में. फॉर्मल कम्युनिकेशन विल हैव रूल्स. अच्छा मैम, कम्युनिकेशन में मतलब हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? मैं आपको नॉलेज दूंगी, कोई आपको मस्ती आप करोगे किसी के साथ, कोई आपको दोस्त मूवी देख के आएगा, वो बोलेगा मूवी के बारे में, उसकी स्टोरी बता देगा आपको. सो कम्युनिकेशन कैन बी आइडियाज, कैन बी फीलिंग्स. somebody is very upset about something, घर पे झगड़ा हो गया, मम्मी ने डांट दिया तो आप बहुत अपसेट हो, आपके भाई से झगड़ा हो गया, आप जाके किसी दोस्त को बता, क्या यार इस टाइप का आज ऐसा ऐसा सीन हो गया. तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, you may be expressing your emotions, you may be exchanging your ideas, your knowledge. Any of this is communication. तो communication में हम क्या क्या exchange कर सकते हैं? Ideas, feelings, knowledge, information, emotions, all this I'm going to exchange through communication. Communication is going to be a two-way process. Communication is going to be a two-way process. Is that okay with everybody? Yes. Now, communication का जो process होता है, it is a process of course you're not yet getting the books, so मैं 10 मिनट ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बुक्स में लिखना, फिर इसका कम्युनिकेशन का हम 2 पेजेस में फ्लो चार्ट बनाएंगे. इनफैक्ट जस्ट yesterday I finished one foundation batch here for BCR and C. One student had prepared one day before the exam, so I said I'll just have a copy so you can just see. So this much part I've done in one day before the exam. मैंने कल photocopy करके लिया कि just to see what all. तो इतने portion मतलब one day before the exam हर topic का हमने summary बनाया है, flow charts के form में बनाया. अगर report writing है तो हमने flow chart से बनाए 3 report writing. तो आप इतना एक page देख लोगे, आपका report writing is done. So you can just read this one day before the exam. So only this much part if you read, even communication we've made nice wonderful flow charts. तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखने से चीजें अच्छे से याद हो जाती है हमें, है ना. तो पहले में कम्युनिकेशन, आपको फिर नोट्स आएंगे तो हम मार्किंग करेंगे और उसका साइड बाय साइड फ्लो चार्ट बनाएंगे. तो फर्स्ट आई थिंक 3-4 लेक्चर्स आई विल टेक फॉर द चैप्टर ऑफ
communication. So I'll take those for the chapter of communication. ठीक है ना? So in the chapter of communication, so what is communication? You told me. अब communication कैसे होता है? मैं आपको जस्ट एक brief कुछ idea देती हूँ. आपने अभी बोला कि देखो communication अगर ऑफिस में करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल. तो मतलब इन शॉर्ट कम्युनिकेशन कैसा होता है? कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल, कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल. कम्युनिकेशन फॉर्मल हो सकता है और कम्युनिकेशन इनफॉर्मल हो सकता है. कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल एंड कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन. दिस इज अ कम्युनिकेशन यू डू विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ये किसके साथ करते हो आप? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ. ऑफिस में भी काम की जब बातें नहीं हो रही, एक दो कलीग्स के साथ बातें कर रहे हो, वो इनफॉर्मल है. क्लास में अगर आप बैठे हो, टीचर आने से पहले आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये क्या है? दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, दिस हैज रूल्स. इसमें नो रूल्स, इसलिए ये सीखना नहीं पड़ता है. इसमें रूल्स है, ये सीखते हैं. इसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसको बिजनेस इंग्लिश बोलते हैं. समझ में आ गया? अब मैम कम्युनिकेशन ऐसा भी तो हो सकता है, कम्युनिकेशन रिटन भी होता है और कम्युनिकेशन ओरल भी होता है. रिटन वर्बल मतलब आई कैन ओके यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड रिटन एंड ओरल. So if I am want to talk about my BCR notes, the notes that I give you is a written communication. When I come and teach you, it is a oral communication. So the notes that you get is what beta? Written communication. आप किसी को मेल लिखते हो, ये क्या है? Written communication. आप किसी को फोन करके बात करते हो, वो क्या है? Oral communication. तो इस टाइप के क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्हाट इज ओरल, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन. कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी होता है. और एक कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे यूज ऑफ वर्ड्स एंड नो यूज ऑफ वर्ड्स. एंड नो यूज ऑफ वर्ड्स. यूज ऑफ वर्ड्स को वर्बल बोलते हैं. वर्बल के आगे दो हिस्से होते हैं, ओरल एंड रिटन. वर्ड्स, लेटर और मेल लिखने के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो रिटन हो गया. लेकिन शब्दों को बोलकर कम्युनिकेशन किया तो वो ओरल हो गया. शब्दों को लिखकर कम्युनिकेशन किया तो वो रिटन होता है. बिना शब्द यूज किए भी कम्युनिकेशन होता है. So somebody is coming, so I'll say just somebody is now, if I'm teaching and somebody enters, so I'll just do this, wait, don't come, so stop. This is body language. I didn't use words, but just by doing this stop, that person understood he's not supposed to enter. That person understood he's not supposed to enter. So communication करने के लिए हमेशा शब्दों का यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है. So communication can be with the help of words, without the help of words. फिर से बोलना, communication can be with the help of words and without the help of words. If you do communication with the help of words, words use किए, तो उसको बोलते हैं वर्बल. वर्बल, मैं इधर आके बात कर रही हूं, शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, इट्स वर्बल. मैं लिख रही हूं, आई रोट दिस, व्हाट इज दिस? रिटन. लिखने के साथ में एक्शंस कर रही हूं, दैट्स बॉडी लैंग्वेज. शब्द मैं ऐसे नहीं यूज कर रही हूं, आई एम यूजिंग टोन. somewhere else go slow down, somewhere my pitch would be high. So you know, this is tones यूज करना, बॉडी लैंग्वेज यूज करना, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आपको घर पे मम्मी ने जिस तरीके से बोला कि यार एक बार बोल दिया कि आज रूम उठने के बाद साफ कर देना, बहुत बिखरा पड़ा है तुम्हारा बेड, कपड़े यहाँ वहां पड़े, तो आपको सीधा बोल दिया रूम साफ कर दे, नॉर्मल टोन में बोला. 4 दिन से आपने किया नहीं, तो जिस टोन में मम्मी बोलेगी आपको समझ में आ जाएगा वो गुस्से वाला टोन है या नॉर्मल वाला टोन है. बात वही बोली, लेकिन टोन भी इंपॉर्टेंट होता है. फ्रॉम द टोन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू टेल यू. सो टोन, बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस, पिच, ये सब भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है. ऑल दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल. मतलब वहां शब्दों का यूज करने की जरूरत नहीं है. शब्दों के साथ थोड़ा सा मैंने पिच हाई कर दिया या थोड़ी मम्मी ने आंखें बड़ी कर दी, तो आपको पता हो गया कि नहीं अभी गुस्सा है, कि क्या दिन भर मोबाइल फोन पे हो, मोबाइल फोन बाजू में रख दो. ठीक है.
तो कम्युनिकेशन में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, अलग अलग टाइप्स, अभी तक सिखाया नहीं है, अब जस्ट आइडिया दे रही हूँ, इस चैप्टर की मुंह दिखाई हो रही है। माने क्या, इसमें क्या क्या सीखेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल मतलब किसके साथ होता है बेटा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इसमें कोई रूल्स होते क्या, नहीं। लेकिन ऑफिस में जाके बात करने के लिए रूल्स होते हैं क्या, यस। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप शॉर्ट्स पहन के जाओगे क्या, गोवा जा रहे हो तो टाई और सूट पहन के जाओगे क्या, नहीं। तो हर चीज को करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वैसे ही ये है, ठीक है। तो फटाफट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है, ऑफिशियल, करेक्ट। उसके बाद ऑफिशियल के कुछ रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल के कोई रूल्स नहीं होते। कम्युनिकेशन में जरूरी देखा जाता है कि आप शब्दों का यूज कर रहे हो या शब्दों का यूज नहीं कर रहे। शब्दों का यूज करते तो उसको बोलते वर्बल, और जब शब्दों का यूज नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। इसमें भी प्रकार होते हैं, वर्बल के टाइप से, नॉन वर्बल के टाइप से, तो ये सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारा पार्ट मैं आपको कम्युनिकेशन के चैप्टर में सिखाऊंगी। So I guess we'll go a little more deeper from tomorrow, because again today notes are not there and I would want you to do markings and all. I'll read out from the notes, so it will help us do it that way. So did you get a brief idea about the subject? Yeah, so I'll be taking a lecture for 1 hour approximately, and 1 hour 15 minutes का lecture होगा, approx 30 to 35 lectures I'll be completing BCR, and you got an idea of the paper pattern roughly, you know roughly हम क्या सीखेंगे। कोई आपको पूछेगा कि अच्छा BCR में क्या है, तो बिजनेस इंग्लिश सीखेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखेंगे। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस करस्पॉन्डेंस का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन। तो हम क्या क्या सीखेंगे, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, हम पैसेज समरी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, नोट मेकिंग, और 2 ही टॉपिक्स छोटे से ग्रामर के हैं वो देखेंगे। Is that okay? Yes, so that was a brief introduction for today's class. Tomorrow's class we'll let you know. अभी आपको आनंद सर आएंगे, आनंद सर के बाद आपका लंच ब्रेक होगा, और उसके बाद हर्षद सर आपका इको का क्लास लेंगे। एंड बाय द टाइम आई थिंक we'll try and communicate to Harshad sir what will be the timings for tomorrow. So if there is any change, then we will be letting you. Otherwise, the same routine we will be following it tomorrow also. Is that okay? So if there's any change right now, because there's no means of communication, एक बार आप क्लास रेगुलर हो जाएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, तो कभी कुछ चेंज होता है तो हम कम्युनिकेट कर देते हैं, और जनरली होता नहीं है। एक बार शेड्यूल फिक्स कर दिया, देन द शेड्यूल विल बी फिक्स्ड, ठीक है। यू हैव एनी डाउट्स दैट यू वांट टू आस्क मी इन व्हाटएवर इंट्रोडक्शन, आपको कुछ बताना है, आपको कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, नहीं? So done? Yes, so I'll see you tomorrow, and then now from tomorrow onwards I'll actually start with the syllabus, and even अगर notes होंगे नहीं होंगे तो भी हम start कर देंगे। तो हम लोग side by side flow charts notebook में बनाना चालू करेंगे। एक 150 या 200, 100 is also enough, but 100 कभी कभी मुझे लगता है कम नहीं पड़ जाए, तो एक 200 पेजेस की आप BCR की एक अलग से नोटबुक बना लेना। Is that okay? Yes, so thank you dear students, and I'll see you tomorrow. Okay? Yes, thank you. Thank you so much. I'm about to stop the streaming. अमर माझं झालं लेक्चर.